Good evening, friends. Welcome back, all of you. Once again, I would like to explain something more in this video. चलिए आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस बात को लेकर कि देखिए कितना बेहतरीन ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। इस फ्लो चार्ट में बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर क्या जगाना होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कोल्ड, दिस इज कोल्ड। देखिए सबसे पहले पुश कीजिए, अपने आप को धक्का दीजिए, सर्व कीजिए, आइडिया परसिस्ट कीजिए, वर्क कीजिए, इंप्रूव कीजिए, फोकस रहिए, पेशेंस। तो यही है जो सक्सेस का मूल मंत्र है। सबसे ज़्यादा आपका अंदर पैशन होना चाहिए, पैशंस, पैशन, फोकस, परसिस्ट, आइडिया, सर्व। ओके, इन बातों को साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप डिस्कॉम टू मिनिमाइज पावर सप्लाई इंटरप्शन इन नेशनल कैपिटल रीजन। ये डिस्कॉम को क्या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ शामिल किया गया है? डिस्कॉम टू मिनिमाइज पावर सप्लाई इंटरप्शन इन एनसीआर, not allowing a coal, not allowing coal या firewood in tandoor at hotels, enhance parking fees for private vehicles, ban on all construction and demolition activities. How it possible? Allowing public, municipal and private offices to work 50% strength. कैसा कैसा सोच है बताइए। इसमें 1 2 3 5 है, 4 नहीं है। ठीक है, measure under the different categories of plan are to be enforced by the Pollution Control Board of the NCR states that the concerned department and agency, including the traffic police, the transport department, and road owning the construction of agency. Action under stage 2, 3, 4 will be invoked 3 days in advance of the AQI reaching the projected level stage 1, stopping all construction and demolition activities with pilot a plot size 500 square meter for a more which had which have not been registered on dust mitigation monitoring portals, mechanized sweeping, water sprinkling on roads, enforcing guidelines on use of anti-smoke guns at construction sites, enforcing ban on open burning of waste and PUCs for vehicles, DISCOM to minimize power supply interruption in NCR, encourage offices to start unified commute for employment to reduce traffic। बहुत सारे हैं इसमें। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको जानना उतना नहीं है डिटेल में। Alliance of Small Island States (ASSOCIS) are particularly vulnerable to and mainly concerned with which of the following? It's a loss, rising sea level. Alliance of Small Island States (OSIS) is an intergovernmental organization of low-lying coastal and small island countries. OSIS was established in 1990 ahead of the Second World Climate Conference. The main purpose of Alliance is to consolidate the voices of small island developing states to address the global warming. These island countries are particularly vulnerable to climate change and its related effect on the ocean, including sea level rise, coastal erosion, saltwater intrusion. The members are among the nation least responsible for climate change, having contributed less than 1% the world's greenhouse gas emission। सोच लीजिए, जिनको मतलब खाए कोई भरे कोई, समझे ना बात, यही कहना चाहता हूँ मैं।
Joint Forest Management Committee (JFMC) is an agency formed at the village level or a cluster of villages situated adjacent to the reserve forest. Which of the following are the function of Joint Forest Management Committee? क्या काम है इसका? JFMC का selecting the plant species to be planted in the forest, ensure sustainable management of forest resources, restore watershed capacity in catchment areas, assure employment opportunity to the tribal communities. जी हाँ, सबके सब. Joint Forest Management Committee (JFMC) is an agency formed at the village level or cluster of village स्टडी या सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास जो विलेज होते हैं, जो उनके लोग होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि कुछ योगदान दिया जाए. अदरवाइज रिजर्व फॉरेस्ट के कारण वहाँ पर कुछ मतलब एक्टिविटी तो होगा नहीं जिससे उनके जीवन में संकट आ सकता है. तो रिजर्व फॉरेस्ट के चारों तरफ रहने वाले जो लोग हैं, खास करके टेरिटोरियल डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस, उनको कुछ मदद करते हैं. क्या क्या काम है JFMC का? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग प्लांट स्पीसीज टू दी. कौन सा प्लांट वहाँ पर लगाया जाएगा जंगलों में, फिजिकल एंड फिनेंशियल टारगेट क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम. JFMC objectives are to ensure sustainable management of forest resources, to improve forest cover via afforestation, to restore degraded forest land, to promote conservation awarenesses through environmental education, restore watershed capability in catchment areas, to assure employment opportunity to the tribal communities. यही सब है. अगला क्वेश्चन है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ कैंपेन, जिसका उद्देश्य सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट बाय adopting environment friendly lifestyle was launched by. किसके द्वारा लॉन्च किया गया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन? चलिए, इसका सही जवाब है इंडिया के द्वारा. लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म ही है. कैंपेन वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 इन ग्लासगो 2021. प्राइम मिनिस्टर called upon global leaders to join the movements for safeguarding the environment by adopting environment-friendly lifestyle. Which of the following animal is often referred to as a ghost of mountains? Ghost of mountains किसको बोलते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है. B स्नो लेपर्ड. Snow leopard often referred to as a ghost of the mountain because of its coat that helps it blend in a snow rocky environment. स्नो रॉकी इन्वायरमेंट में भी इसको टिकने में आखिर मदद करता है. इसका जो कोट है ना, फर, वही, इसलिए स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलते हैं. अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के संबंध में. थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बिंडवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये क्या है? सब के सब रामसर साइट्स है, सब के सब बर्डिंग साइट्स है. ऑल ऑफ देम नेचुरली फॉर्म वेटलैंड्स है. सब के सब बात एक और दो सही है. ऑल ऑफ देम नेचुरली फॉर्म नहीं है, एक बनाया गया है, मैनमेड भी है. थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड विंडवानास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर रामसर साइट एंड बर्ड साइट. लेकिन थोल लेक आर्टिफिशियल लेक है जो गुजरात में पड़ता है. बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है कि पहला जनरेशन बायोफ्यूल्स जो होता है उसको शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट से बनाया जाता है या उसी से उत्पत्ति होती है उसकी. जबकि सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स का उत्पादन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अलगी से होता है. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स का निर्माण जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं जैसे कि सेलुलोजिक बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट बायोमास. तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स स्टार्च वेजिटेबल से बनता है, सेकंड जनरेशन माइक्रो एल्गी से बनता है, थर्ड जनरेशन इसमें एक ही सही है केवल, क्योंकि बायोफ्यूल्स आर द लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स, खास करके जो कि बायोमास से उत्पन्न होता है. एंड कैन बी यूज टू रिप्लेस और कैन बी यूज इन एडिशन टू डीजल, पेट्रोल
और अदर जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम जिसका इस्तेमाल हम अपने ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, पोर्टेबल अदर एप्लीकेशन के लिए करते हैं, उसको रिप्लेस करने की कोशिश है, या तो उसके स्थान पर कम से कम ये भी इस्तेमाल हो। क्रॉप्स यूज टू मेक बायोफ्यूल्स आर जनरली इधर हायर इन शुगर। जो क्रॉप्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम बायोफ्यूल बनाने में करते हैं, वो उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि शुगर केन, शुगर बीट, स्वीट सॉर्गम, स्टार्च सच एज मेज, टोपैका, ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन, रेपसीड, कोकोनट, सनफ्लावर। बायोफ्यूल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला की है जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स होता है, उसका निर्माण जो होता है वो बायोफ्यूल्स ही होगा, लेकिन शुगर से, स्टार्च से, वेजिटेबल ऑयल से, या फिर एनिमल के फैट से, कन्वेंशनली टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कॉमन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स इंक्लूड बायो अल्कोहल्स, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, या फिर बायो ईथर, या फिर बायोगैस। अल्कोहल, डीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर, बायोगैस, ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है। जबकि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है ना, इसका निर्माण नॉन फूड क्रॉप से होगा, जैसे कि सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स, या फिर बेस्ट मटेरियल से होगा, बायोमास, जैसे कि जो गेहूँ होता है उसका जो छिलका होता है, या फिर जो वुड होता है लकड़ी, उससे। एग्जाम्पल जैसे कि बायोफ्यूल, जैसे कि बायोहाइड्रोजन, बायोमेथनॉल। जबकि थर्ड जनरेशन जो होगा ना, वो बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक algae. Which of the following are methods of ex situ conservation? ex situ का मतलब होता है संरक्षण का एक ऐसा तरीका जो उसके 100 स्थान से हटकर बाह्य किया है दूसरी जगह, जैसे बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन होगा नहीं, सेक्रेड ग्रोव, जूलॉजिकल पार्क्स तो होगा नहीं। चलिए, इसका सही जवाब है 1, 2, 4। Our country in situ conservation efforts are reflected in its बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि आप अगर इन सिटू कंजर्वेशन के तौर पे देखिएगा तो एक तो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भी सेक्रेड ग्रोव्स हैं। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन जो होता है, जो इसमें इंक्लूड किया था प्रोटेक्टिव एंड मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, जो बहुत ही खतरे में है, तो उसको वहाँ से उठा के कहीं और ले जाते हैं, उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर, प्रोपागेशन, और क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमेट्स, यही सब होता है एक्स सी टू। ठीक है, उसके मूल स्थान से उठाकर कहीं और उसको प्रिजर्व करने का तरीका है। जू क्या है सब, वही सब है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स causes 90% लेस एयर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वंस। जैसे हम पटाखा वगैरह फोड़ते हैं तो जनरल जो पटाखा पटाखा होता है वो बहुत खतरनाक पोल्यूशन तो करता है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स 90% कम करता है। ऐसा क्या? Green crackers absorb dust and don't contain hazardous elements like barium nitrate. इसमें बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है क्या? They are developed by the Council of Scientific and Industrial Research. CSIR क्यों बनाएगा इसको? देखिए, इसका सही जवाब 2 और 3 है, CSIR ही बनाएगा। तो ग्रीन क्रैकर्स जो है 90% नहीं भैया, बल्कि केवल और केवल 3%, 30%। ग्रीन क्रैकर्स और and traditional care car use या causes pollution and people should refrain from using either। मतलब कोशिश करिए पटाखा वटाखा ना फोड़ने का, क्योंकि दिवाली बिना पटाखा का नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, हो जाएगा। कोशिश कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, हंसिए, खेलिए, उनके साथ रंगोली बनाइए, लेकिन पटाखा फोड़ना जरूरी है। तो देखिए, फिर भी अगर फोड़ना चाहते हो तो देखिए क्या डिफरेंसेस है, सीख लीजिए। जो ग्रीन क्रैकर होता है ना, उससे 30% लेस एयर पोल्यूशन होता है, जो हम लोग जनरली पटाखा वड़ाखा फोड़ते हैं उससे। ग्रीन क्रैकर्स यूजेज या रिड्यूसेस इमिशन substantially and absorb dust and don't contain hazardous elements like barium nitrate। इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसा कुछ होता नहीं है। टॉक्सिक मेटल्स इन ट्रेडिशनल क्रैकर्स आर रिप्लेस्ड विद द लेस hazardous कंपाउंड। जो ट्रेडिशनल पटाखा वड़ाखा होता है, जो क्रैकर्स होता है, आतिशबाजी जो होता है, उसमें कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उसको हटा दिया जाता है, hazardous। ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स डेवलप बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के द्वारा इसको बनाया गया है।
कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लॉथ बियर। स्लॉथ भालू के बारे में बताना है। स्लॉथ बियर्स आर इंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या ये भारत उपमहाद्वीप में मिलता है? इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में और कहीं नहीं। एंड 90% ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया, और उसमें से भी केवल 90% भारत में मिलता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया is an organization involved in sloth bear conservation and protection for over 2 decades। पिछले 20 सालों से वाइल्ड लाइफ एसओएस इस पे लगातार काम कर रहा है ताकि इनका प्रोटेक्शन हो पाए। द स्पीसीज हैज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर्स। मतलब उनको, मतलब शॉर्ट में कहे तो राइनो, एलिफेंट और टाइगर को जो संरक्षण मिलता है, जितना कैटेगराइज उसमें रखा गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो ढेर सारा जो है, क्या है पता है ना आपको, अनुसूची, तो उसी अनुसूची में उसको रखना तो चाहिए। देखिए डी सही है, 1 2 3। फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे। पहला जो स्लोथ बियर डे मनाया गया 12 अक्टूबर को 2022 को पहला स्लोथ बियर डे मनाया गया, ताकि इस बात की जागरूकता फैलाई जा सके कि इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। और ये स्पीसीज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है, और उसमें से भी 90% भारत में मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और आईयूसीएन ने इसको वल्नरेबल लिस्ट में रखा है, और इसकी पॉपुलेशन जो है इंडिया में 90% है। प्रपोजल दिया गया है कि मतलब स्लोथ बियर डे जो हम लोग 12 अक्टूबर को मनाए हैं पहली बार, वॉज मूटेड बाय द वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया। वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया जो है इसका मतलब एक तरह से संरक्षक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है इसी काम में कि किस प्रकार से इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर काम किया जाए, पिछले 20 सालों से लगा हुआ है। Sloth bears are identified by their very distinct long, saggy, dark brown और black fur। लंबा लंबा टंगी उसका टांग होता है, सैगी ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक फर होता है, डिस्टिंक्ट वाइट भी शेप्ड चेस्ट होता है, भी शेप से चेस्ट, 4 इंच लॉन्ग आइवरी colored curved by the claws used for digging out termites ants from rock hard mounds, listed under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India 1972. The species has the same level protection as tiger, rhino, elephants। Consider the following statement about वेवनाड लेक। वेवनाड लेक के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि वेवनाड लेक जो है वो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, सबसे लंबी नदी है। क्या? इट फॉर्म्स कुटनाड कुटनाड वेटलैंड टोपोग्राफी ऑफ केरला। इट फॉर्म्स कुटा कुटानड कुटानड वेटलैंड टोपोग्राफी ऑफ केरला। एंटायर लेक इज अबव द सी लेवल। सोचिए 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 वेवनाड के बारे में। इसका 1 और 2 सही है। वेवनाड इज द लार्जेस्ट नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक इन स्टेट ऑफ केरला। केरला की सबसे बड़ी, भारत की सबसे लंबी झील है, केरला में है, ठीक है। और कुट्टानड या कुटानाड जो भी हो, कुटानड ऑल्सो नन एज राइस बाउल ऑफ केरल। कुटानड को राइस बाउल ऑफ केरल कहते हैं। हैज द लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया and is also one of the few places in world where cultivation takes place below the sea level। ध्यान रहे यहाँ पर कल्टीवेशन बिलो द सी लेवल पे होता है। कुटनाड लाइज ऑन द सदर्न पोर्शन ऑफ द वेवनाड। ये सदर्न पोर्शन में है, ठीक है। वेवनाड के सदर्न पोर्शन में कुटनाड है, जहाँ पर जो खेती होती है वो सी लेवल से बिलो में होती है, और ये धरती के बहुत चुनिंदा जगहों में से कुछ है। Consider the following statement regarding greenhouse gas. Shorter wavelength, shorter wavelength infrared radiation from sun can enter into the greenhouse. Shorter wavelength infrared radiation from the sun can enter into the greenhouse gas.
ग्रीन हाउस जिसमें प्रवेश किया जाता है, जो ग्रीन हाउस बनाते हैं ना वो घरवा हरा रंग का कांच का पूरा, क्या उसमें सोलर वेवलेंथ घुस जाएगा? तो सोलर वेवलेंथ तो घुस जाएगा, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ बाहर नहीं निकल पाएगा। लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड and the planets inside the greenhouse can pass back out completely through the glass. Pass back out, जो हम लोग जो बनाते हैं घरवा, स्पेशल घर जिसमें प्लांट नर्सरी में बनाया जाता है, और ये ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप कर लेता है। नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलिए, इसका बी जवाब है एक, करेक्ट स्टेटमेंट बी है। देखिए, ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर विथ वॉल्स एंड रूफ मेड चीपली ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि ग्लास से बना होता है, ग्लास का एक घर होता है, कुछ होता नहीं है ये, जिसमें कि प्लांट्स रिक्वायर रिंग रेगुलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन और ग्रोन, मतलब उसमें आप आराम से ऐसा कंडीशन डेवलप कर दीजिएगा जिससे कि प्लांट को आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। सोटर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि सूरज से आ रहा है वो इंटर करता है इस ग्रीन हाउस में, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है ना इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देख लीजिए कितना सुंदर बनाएंगे, यही है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Hybridization involves crossing two genetically dissimilar plant varieties that can even be from the same species. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स वैराइटीज के आपस में इंट्रैक्शन करते हैं और एक नया उसी प्रकार का स्पीसीज पैदा कर देते हैं। द फर्स्ट जनरेशन offspring from hybridization tend to have higher yields than what either parent can individually give. जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग होता है फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन टेंड टू हैव हायर यील्ड्स देन व्हाट ईदर पेरेंट कैन इंडिविजुअली गिव। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी GEAC under the Ministry of Science and Technology is responsible for appraisal of proposal relating to the release of GM organism and product into the environment। करेक्ट बताना है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पे सोचिए। दूसरा स्टेटमेंट एक और दो सही है, तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट वैरायटी, दो अलग अलग जेनेटिक रूप से डिसिमिलर प्लांट दैट कैन इवन बी फ्रॉम द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज से भी हो सकता है वो। The first generation offspring from such crosses tend to have higher yields than what either parent can individually give. Such hybridization is not easy in mustard. सरसों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान नहीं है। As its flowers have both female pistil and male stamen reproductive organs, making the plants largely self-pollinating. चूंकि सरसों में क्या होता है ना, एक ही फूल में दोनों पिस्टिल और स्टेमन दोनों मिलता है, जो कि उसको सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या करता है, फोर्स कर देता है। सिंस द एग्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट बी फर्टिलाइज बाय द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर, इट लिमिट्स द स्कोप फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड। अनलाइक इन कॉटन, जैसे कि कॉटन में हो सकता है, मेज में हो सकता है, टोमेटो में हो सकता है, जहाँ की मतलब पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट सरसों में तो ऐसा हो नहीं है। सरसों में तो मादा जनांग और क्या बोलते हैं, पुरुष जनांग, दोनों एक ही में होता है। पिस्टिल बोलते हैं और स्टीमन एक ही में पाया जाएगा, तो पोलिनेशन की कोई भूमिका ही नहीं है वहाँ पर। तो वेयर दिस कैन बी डन थ्रू द सिंपल emasculation or physical removal of anthers. GEAC is a body responsible for a proposal relating to the release of GM organism and product ordinarily considered hazardous into the environment.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द स्टेट वर्ड। ये तो हल्का क्वेश्चन है, राजस्थान का है। देखिए, रिसेंटली साइटिंग द थ्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डीप इन पाकिस्तान डेजर्ट का नाम है कोलिस्तान has given rise to the speculation that the endangered birds might have flown across the international border from India's Desert National Park. GIB are critically endangered in Pakistan because the lack of protection and rampant hunting. जो जीब है, which is the state bird of Rajasthan, is also considered India's most critically endangered bird and is protected under the Wildlife Protection Act. Its population, about 150 in Rajasthan, accounts for 95% of its total world population. दुनिया का पूरा 95% राजस्थान में ही मिलता है ये गिब। द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ गिब्स was taken up in the DNP through a project executed by the Dehradun West Wildlife Institute of India 2019. Consider the following statement regarding the seaweed. जंगली जो घास पतवार होता है जो कि समुद्र में उगता है उसके बारे में। सीवीड सीवीड इज ए कॉमन नेम फॉर काउंटलेस स्पीसीज ऑफ मेराइन प्लांट्स algae. Seaweeds are detrimental to human health and consumption of the same should be avoided. ऐसा कुछ नहीं है। They are not confined to only ocean water. ये भी सही बात है। तो एक और तीन सही है। Seaweed is the common name for the countless species of marine plants, algae that grow in the ocean as well as in river, lakes, other water bodies. Some seaweeds are microscopic, such as phytoplankton that live suspended in the water column and provide the base for the most marine food chains. Some are enormous, like the giant kelp that is grow in abundant forest and tower-like underwater redwoods from their roots at the bottom of the sea. Most of the medium-sized come in colors of red, green, brown, black, and randomly wash up on beaches and shoreline just about everywhere. Seaweed is chock full of vitamins, minerals, fiber. Consider the following statement regarding blue flag certification. Blue flag certification is an exclusive eco-label or certification that is given to coastal location around the world as a badge of environment honor. Blue Flag program is run by United Nations Environment Program in association with International Union for Conservation of Nature. जी नहीं, it it is awarded for beaches, marines and sustainable boating tourism operators। Yes, of course। चलिए, बी इज द राइट आंसर। 1 3 दो गलत है। ब्लू फ्लैग इज एन एक्सक्लूसिव इको लेवल या सर्टिफिकेशन है जो कि दिया जाता है कोस्टल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज रन बाय कोपेनहेगन डेनमार्क हेडक्वार्टर फाउंडेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE, एक नॉन प्रॉफिट है। थ्रू इट्स वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स of the United Nations. According to the FEE, the Ionic Blue Flag is one of the world's most recognized voluntary awards for beach. Iconic Blue Flag is one of the world's most recognized voluntary awards for beach, marinas, sustainable boating tourism operators. In order to qualify the Blue Flag, arise a series of stringent environmental, educational, safety, accessibility criteria must be met एंड मेंटेन्ड। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1987 में, इनिशियली इन यूरोप में। सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड एनुअली, हर साल मिलता है सर्टिफिकेट। टोटल 5042 बीचेज को और मैं मरीना टूरिज्म बोर्ड इन 48 कंट्री, 5000 से अधिक 48 कंट्री से ज़्यादा इस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लेवल। A small marina is a small harbour is pleasure of the boat